एम आई ऑडिएबल? ऑडियो जा रही है? यस सर। ओके। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के रिगार्डिंग हम लोग देख रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ओके एडिशनल पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड आई थिंक दिस इज डे 3 फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, आर फॉर दिस चैप्टर आई थिंक डे 3, नॉट डे 3, डे 4, राइट? जो भी है। ओके, सो in Active Directory Domain Services, now we are going to discuss about the another server which is child domain controller. Okay, there is another server in Active Directory Domain Service which is child domain controller. तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर देखा कि वी कैन मैनेज मीन्स एज अ सर्वर एडमिन वी कैन मैनेज everything in any tree server or on any tree server. Like child domain controller also maintain different types of task, and same as per domain controller, as per DC server we can manage everything on child domain controller. Okay, so सब कुछ हम लोग इधर भी मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता। बट क्या हम लोग यूनिक या क्या हम लोग एक्स्ट्रा इधर मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इधर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक हायरार्की बताया था जिसमें हमारा सबसे टॉप पर जो सर्वर था, रूट सर्वर था, विच इज़ आर डीसी सर्वर, एंड अंडर डीसी वी कैन क्रिएट CDC. ओके, and another we can also create multiple child domain controller. So what about CDC? CDC क्या है, कैसे मैनेज करता है? तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट अबाउट CDC, दिस इज CDC, and the first point is this is the our particular CDC stand for child domain controller, and it is a part of domain hierarchy. It is a part of uh, domain डोमेन हायरार्की। तो जो भी हमारा डोमेन हायरार्की है उसी का, या हिरार्की जो भी आप इसको बोलो, उसका ये सिंपल क्या है, एक पार्ट है, राइट? एंड इट मैनेज इंडिपेंडेंट सर्विसेज। ओके, और सिंपल इट हैज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, राइट? Means a specific server can manage user environment, can manage group environment, can manage policy, deployment, everything as a domain controller, ये सारी चीजें मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट बिल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप। ओके, इट क्रिएट रेप्लिकेशन। ओके, सो इट मेंटेन ट्रस्ट रिलेशनशिप, trust relationship. It maintain replication with replication means, yeah, trust relationship means automatically it trust and share information with the parent domain. Okay, means our child domain controller connect with parent domain controller or work under the hierarchy or under the parent domain controller. Okay, so it create or it has a specific trust to manage the everything as per the guide or like a policy of Active Directory Domain Controller service. Okay, or Active Directory Domain services. Okay,
It also maintain the replica. Okay, it maintain the replica means like Active Directory domain services can create copy of data, can sync data with other domains. Okay, तो replica means copy of data. Okay, एक हमारा जो डेटा है उसकी कॉपीज अब देखें, या इट पर्टिकुलर पर्टिकुलर रेप्लिका मीन्स सिंक डेटा। ओके, विथ अदर डोमेन। ये क्या करता है, अदर डोमेन के साथ उसकी कॉपी, उसका रेप्लिका, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है। एंड स्पेसिफिक सीडीसी सर्वर कंट्रोल सिक्योरिटी, है ना। सो इट हैज़ सिक्योरिटी कंट्रोल सेम एज अ डीसी सर्वर। ये अपना खुद का सिक्योरिटी कंट्रोल रखेगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पॉलिसी डिप्लॉयमेंट है, किसको क्या परमिशन देनी है, मीन्स या जो भी हमारा एक्सेस रूल है, डिप्लॉयमेंट पॉलिसी का रूल है, या किसी भी तरीके का जो सिक्योरिटी लेवल की पॉलिसीज है, वो सब कुछ ये मेंटेन एंड कॉन्फ़िगर करेगा। ओके, तो child domain controller also have to maintain the security policy for the domain object or for the domain environment. Okay, and then next point, we can add for child domain controller like it maintain the administrator or administrative delegation or admin delegation. So what is admin delegation means, it allows specific administrative task to delegate within its domain. Means if you want to, or as a server admin who have access of child domain controller, particular admin or administrator team can deploy the administrative privilege to the other domain. Okay, over the domain environment. Okay, so if you want to delegate the domain uh, authority or domain or admin delegation to the other domain, you can manage. Okay, तो अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की प्रिविलेज या किसी भी ऐसे पर्टिकुलर टास्क के लिए एडमिन प्रिविलेज अलाउ करना है अदर डोमेन्स को, सो स्पेसिफिकली यू कैन मैनेज एंड यू कैन कॉन्फ़िगर। तो ये सारी चीज़ें इधर मैनेज करता है। और इधर भी हम लोग वी कैन क्रिएट organizational unit, we can create users. Okay, we can create group, we can manage computers, we can add multiple other domains. Okay, other domain members, if you want to add more members, more domain in the same environment, you can with the help of child domain controller. Also, you can create additional domain controller for any child domain controller. Also, you can create a read-only domain server for child domain controller. Same thing you can manage for a main server, which is ADC for DC server and RODC for DC server. So you can plan. Okay, there is no limitation. You can manage as much as possible. सो मेन थिंग इज टू योर आर कंपनी बजट, कि भाई कंपनी कितने सर्वर अलाउ कर सकती है, कितने सर्वर के लिए उसका बजट अलाउ कर रहा है। सो एज पर नीड ये सारी चीज़ें प्लान करी जाती हैं कि कितना बजट अलाउ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड सेम यहीं पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन की बात हो रही है, जैसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की। सो वी हैव additional domain controller in domain environment we can create if uh, any requirement of additional domain controller. Okay, so like what type of need and requirement, जो भी हमारा मतलब कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को बिल्ड करने के लिए फोर्स करता है, तो वो नीड एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर स्पेसिफिक कंपनी, फॉर लार्ज कंपनी, है ना, फॉर स्मॉल लेवल बिजनेस, ये सब डिफाइन करते हैं, है ना। समटाइम्स वी हैव ओनली स्मॉल लेवल स्मॉल बिजनेस। ओके, एंड देर इज नो नीड टू स्केल द सर्वर environment,
okay, because single server can handle the small business, okay. But if you have big database, okay, big database are like big data center, then it is very very important to manage multiple server to maintain the policy, to maintain the services, okay. Because low level resources cannot handle the large level traffic, okay. So it is recommended, or it is important to maintain the domain environment with multiple servers, okay, फॉर एंटरप्राइज नेटवर्क। तो ये सारी चीजें हैं। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या करता है? जस्ट अ शैडो, एडीसी इज जस्ट अ शैडो और कॉपी ऑफ सर्वर। ये किसी भी पर्टिकुलर सर्वर का एक शैडो हो सकता है या स्पेसिफिक एक कॉपी हो सकता है, राइट? राइट, so you can create copy of DC server, you can create copy of CDC server, okay। तो ADC सर्वर आप DC और CDC किसी का भी बना सकते हो। सो मेन पर्पस, लेट मी चेंज द कलर फॉर a detailed definition. So first thing about ADC is build redundancy, is to build redundancy, okay, means particular additional domain controller server provide backup and ensure the continuity of domain environment, okay, means redundancy means it is a टेक्नोलॉजी। और redundancy मीन्स एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कंपोनेंट बोलेंगे जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है बैकअप को, ओके। Backup in the sense, if one server goes down, another server will work for same service, okay. So there is redundancy, means for a same task we have multiple resources to maintain the service, okay. And due to this there is no downtime in domain environment, right? Clear है सभी को? Yes, yes. Okay, another thing, like it maintain load balancing also. It is used for load balancing. What is load balancing? Means we can balance the load. Sometimes particular server can respond the or can reply the traffic. Sometimes this server can reply the traffic, okay. Means both server work together to balance the traffic, okay. You can create additional domain controller for this server if you are if need a requirement, अगर जरूरत है कुछ ऐसा है तो so we can create, there is no problem, right? So there is multiples ecosystem or multiple need to build a additional or to build an additional domain controller for a environment, for a domain environment, okay. So maintain load balancing in the sense it distribute the uh, traffic, okay, or it particular load balancing distribute the performance एज पर ट्रैफिक रिक्वेस्ट, ओके। तो ये कुछ ये काम करेगा, कुछ ये काम करेगा, तो दोनों काम बांट लेंगे। इससे क्या होगा कि एक बेटर रिजल्ट, रिस्पॉन्स, सर्विस रिक्वेस्ट, रिप्लाई, ये सब देखने को हमें यहाँ पर मिल जाता है, ओके। एंड वन मोर थिंग वी कैन ऐड, लाइक लोकल ऑथेंटिकेशन। Local authentication means allow user in remote location to authenticate locally, okay. Local authentication means it allow for authentication, okay, for remote access, okay, for other user uh, like credentials or service। जैसे कि हमें कोई स्पेसिफिक सर्वर को कोई यूजर को कोई स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करना है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है, सो इट इट कैन मेंटेन, ओके। बट रूट लेवल ऑथेंटिकेशन can't handled by specific additional domain controller. So root label service can handle our authentication can manage by only root server. Okay. So there is only one root server over a domain environment. Okay. With 50 servers, there is only one root server. Okay. In same ecosystem, there is uh, like अगर सीखो लाइव डॉट कॉम के डोमेन इन्वायरमेंट में 50 सर्वर है,
सर्वर्स हैं, तो वहां पर एक ही हमारा टॉप लेवल का ये फर्स्ट सर्वर एज अ रूट सर्वर उधर होता है। Okay, so this is also means local authentication, maintain the local authentication. It would be great for like domain environment कि यूज़र को अगर लोकल ऑथेंटिकेशन चाहिए या किसी भी ऐसे टास्क के लिए, तो डेफिनेटली पर्टिकुलर सर्वर कैन रिप्लाई, राइट। एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी, डेफिनेटली इम्प्रूव इम्प्रूव अवेलेबिलिटी। Improve availability means specific server can handle the traffic, balance the load, maintain the redundancy. These are the features to maintain or to improve the availability of domain controller, of domain server. Okay. So it maintain the downtime. यहाँ पर एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं, इट मेंटेन डाउन टाइम over the domain environment. Okay, and also you we can add it maintain fault tolerance. Okay, मीन्स सिंपल, ये क्या करता है कि अपने किसी भी सर्विस को या स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके काम करता है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर अपना काम कर रहा है, एडिशनल रूट सर्वर भी काम कर रहा है, इसके साथ और भी डोमेन्स हो सकते हैं। तो ये एक तरीके का पूरा एक फॉल्ट टॉलरेंस पर काम करता है। फॉल्ट नहीं होने पाता क्योंकि एक काम को करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। एडिशनल डोमेन इन्वायरमेंट में वी कैन क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एज पर बजट ऑफ कंपनी और इन्वायरमेंट, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। स्केलेबिलिटी, we can easily scale the domain environment, right, as per need. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 साल बाद हमारा बिजनेस ग्रो करता है और मेरा बिजनेस 10 शहरों में स्केल हो जाता है ना, और वहाँ पर पूरी फॉर्म सप्लाई हो जाती है, वहाँ हर एक पर्टिकुलर फॉर्म्स में, हर पर्टिकुलर कंपनी में मेरे 500-500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सो ये रिकमेंडेशन या ये पर्टिकुलर नीड हमारा कैसे फुलफिल होगा? वी हैव टू स्केल आवर डोमेन इन्वायरमेंट। पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हमें डोमेन इन्वायरमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, देन वी कैन मैनेज दीज ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आर अदर मल्टीपल डोमेन टाइप्स ऑफ कंट्रोलर और डोमेन कंट्रोलर टाइप्स। ओके, बहुत सारे तरीके सीडीसी हम लगाकर दूसरी ब्रांच के लिए दे सकते हैं, नॉट ओनली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर टू स्केल दी डोमेन इन्वायरमेंट, बट इफ यू हैव मल्टीपल सीडीसी डोमेन कंट्रोलर और सीडीसी, सो ऑल्सो सीडीसी का जो लोड है, जो ट्रैफिक है, वो तो हमारे रूट पर आ रहा है ना, सो इट इज मैंडेटरी टू स्केल दी आर टू लाइक क्रिएट मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट एज पर ट्रैफिक। भाई कि अगर हमारे पास आज 500 यूजर के लिए ट्रैफिक मैं इस सर्वर से दे रहा हूँ, कल को 5000 हो सकते हैं, तो फिर हमारा यूटिलाइजेशन सीपीयू का मान लिया 670% हो गया। वी कैन मॉनिटर आर सर्वर कि भाई हमारे जितने सारे यूजर हैं सब एक साथ अगर हमारे सर्वर को लाइव एक्सेस करते हैं तो क्या उसकी ट्रैफिक हैंडल करी जा सकती है? सीपीयू यूटिलाइजेशन कहाँ जा रहा है, कितना परसेंट सीपीयू फ्री है, कितना रैम फ्री है, कितना स्टोरेज फ्री है, क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो वी कैन एक्नॉलेज, वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन मॉनिटर। ओके, एंड एज पर डिटेल, एज पर रिजल्ट, वी कैन अपग्रेड द डोमेन इन्वायरमेंट, राइट। हमें अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना कि भाई अगर हम एडिशनल एक लगा देते हैं तो हो सकता हो कि यहाँ पर जो 180% सीपीयू जा रहा था वो अभी 60% आ गया। तो अगर आपको इसको और डाउन करना है, सो वी कैन क्रिएट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और वी कैन क्रिएट अनदर डोमेन कंट्रोलर। ओके, और भी डोमेन्स इन्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं ताकि यूजर ट्रैफिक जो है ना, या यूजर रिक्वेस्ट जो है वो अलग अलग सर्वर पर डाइवर्ट हो, अलग अलग सर्वर पर या अलग अलग सर्वर से हैंडल हो, है ना। सो दीज आर द like feature and functions, okay, to maintain the availability of domain environment with the help of additional domain controller। ये सारी चीजें एक अवेलेबिलिटी को ही क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मीन्स आपके सर्वर 100% अवेलेबल रहेंगे अगर आप इन सारी टेक्नोलॉजी, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, and one more thing we can learn in the Active Directory domain environment, which is RODC.
there is no concept of RODC, but yes, we can learn what is the feature and functions of RODC. RODC means it is also the part of डोमेन कंट्रोलर, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। स्टैंड फॉर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर से ही हमें पता चल रहा है कि स्पेसिफिक सर्वर हैव ओनली रीड परमिशन, राइट। मीन्स इस सर्वर के पास ओनली रीड परमिशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा सा शोरूम है ना, एक बड़ा सा शोरूम है, और मान लिया कि यहाँ पर मोबाइल का शोरूम है। तो आप देखते होंगे शोरूम में जाने से पहले एक गेट पर एक पर्सन खड़ा होता है, एक पर्टिकुलर बंदा होता है, जो कि इसका काम क्या होता है, ये इतना ऑथोराइज नहीं है कि ये यहाँ से प्रोडक्ट लेकर आए और आपको यहाँ पर सेल कर दे, है ना। देर इज सम लिमिटेशन। और जो स्टोर पर बंदा बैठा है या जो स्टोर पर मोबाइल्स दिखा रहा है, उसको भी इतना वो नहीं है कि वो आपको सेल करके पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दे। उसको भी अपने बिलिंग के लिए और उस चीज़ के लिए और डिपार्टमेंट के पास जाना होता है ना। पैकेजिंग के लिए और कहीं पर भी उसको और कहीं भेजना पड़ता है। देर इज सम SOP, है ना। तो यहाँ पर हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एक आ जाता है, और इसका काम क्या होता है, ये भी हमारे लोड को बैलेंस करने के लिए, है ना, हमारे सर्वर के इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बट इट हैज़ ओनली रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली परमिशन। ओके। मीन्स ये कोई भी डेटा राइट नहीं कर सकता। जैसे मैंने क्या बताया कि ये जो गेट पर बंदा है, ये कोई भी डेटा अंदर इनपुट नहीं कर सकता। डेटा राइट करने का मतलब ये इंफॉर्मेशन यहाँ लेकर जाएगा, बट उसके अकॉर्डिंग या इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये कोई मॉडिफिकेशन खुद नहीं कर सकता, है ना। मीन्स देर इज लिमिटेशन ऑफ चेंजेस, है ना। मतलब इट हैज लिमिटेड चेंजेस, ये हर तरीके के चेंजेस नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, राइट। एंड like limited changes means it cannot make direct changes to active directory. It has read only permission because it has read only permission. तो ये डायरेक्टली हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, बट यू कैन क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ऑफ एनी डोमेन और फॉर एनी डोमेन, है ना। इसके लिए हमें एक नए सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ADC के लिए हमें जैसे नए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, CDC के लिए हमें नए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है ना। यू कैन नॉट क्रिएट DC CDC ADC ऑन अ सिंगल सर्वर। एक सर्वर पर नहीं, आपको जितने डोमेन इन्वायरमेंट कंपनी के लिए क्रिएट करने, यू कैन बाई, और कंपनी कैन बाई मल्टीपल डोमेन्स। आज मैं, मुझे पता नहीं क्यों इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट टू एवरीवन ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे अ, शाम को 4-5 बजे से ही बहुत तेज नींद आ रही है, और पता नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है। तो ध्यान देना सभी लोग, पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं। नो सर। No, Sir, sir. my question is here कि if I have a style domain controller, if I have a domain control, तो why we need to create the RODC? वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नो वरी, राइट। Same here, sir. Because RODC, if RODC server has the limited applicability, I'm not getting that. What is the use? ओके ग्रेट। तो मैंने अभी शोरूम का एग्जांपल दिया, वो आपको यहाँ तक क्लियर और हुआ। सॉरी सर, वन मोर वो थिंग समझ गया कि सर। अगर आपको सर अनवेल लग रहा है ना, तो सर यू कैन गो एंड टेक इन रेस्ट सर। आई थिंक दैट दिस इज द बेटर सर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक है तो फिर अभी 1 घंटा हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक, सारा क्लियर हुआ ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने शोरूम का एग्जांपल दिया फॉर RODC। हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, RODC क्या कर रहा है, अभी हम लोग और इसके सारे पॉइंट को समझते हैं, राइट। बट RODC में मैंने जस्ट एक पॉइंट एक्सप्लेन किया अभी कि RODC स्टैंड फॉर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि RODC के पास, यानी कि एक ऐसा सर्वर हम इंप्लीमेंट करें जिसके पास सिर्फ रीड करने की परमिशन है, राइट करने की परमिशन
नहीं है। आप समझ रहे हो? ये समझ में आया सबको? रीड इन द सेंस कि अगर कोई यूजर की रिक्वेस्ट है हमारे डोमेन कंट्रोलर के लिए, तो वो ये रीड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मतलब अगर कोई भी यूजर कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, एज पर रिक्वेस्ट ये इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है ना? डोमेन में होगा तो कर लेगा सर। डोमेन में ही देयर है इज नो तभी इशू। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनेगा, ये इंडिपेंडेंट सर्वर बनेगा ही नहीं, राइट? हम्म। क्लियर है? विदाउट डोमेन और लाइक टॉप लेवल रूट और डोमेन, देर इज नो चांस टू क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ओके, नो चांस टू क्रिएट एडीसी, नो चांस टू क्रिएट सीडीसी। तो इन सभी के लिए तो हमारे डोमेन में होने ही होने। सीडीसी की बात हो रही है तो मतलब ये डोमेन में है, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट सर्वर नहीं है। ओनली रूट सर्वर जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट सर्वर है। ओके, तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मैंने ये बताया कि ये रीड कर सकता है इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये, आप मान लिया कि मैंने कोई अपडेट, कोई रिक्वेस्ट क्वेरी किया मैंने अपने डोमेन से, एज अ मैं डोमेन का मेंबर हूं, और ये मेंबर या ये यूजर क्या करता है, डोमेन से कोई क्वेरी करता है। क्लियर है? अब डोमेन की क्वेरी, अब हमारे पास अगर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोल कैन हैंडल दी ट्रैफिक। गेटिंग माई पॉइंट? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर राइट नहीं कर सकता, बट जो रीड लेवल की इंफॉर्मेशन है उसको तो रीड करेगा ना, रिप्लाई भी करेगा और सारी चीजें। ओके, अब देखो, वही ओके मैंने सर। यहां पर कहा कि जो हमारा ये शोरूम पर पर्सन बाहर खड़ा है, ये कोई चेंजेस नहीं कर सकता, बट बाहर के जितने कस्टमर आ रहे हैं वो सबसे पहले इंटरेक्ट किससे हो रहे हैं? ट्रैफिक बैलेंस हो रहा है ना। वो डायरेक्ट शोरूम या जो पर्सन वहां मोबाइल बेच रहा है, या जो मैनेजर बैठा है, या जो बिलिंग कर रहा है, उससे नहीं ये लोग डायरेक्ट मिल सकते, है ना? गेटिंग माई पॉइंट? हमारे Yes, डोमेन sir. You, इन्वायरमेंट में, गॉट sir, इट you mean to say सर। that just like a traffic police? यस यस बोल सकते हो, है ना? It can maintain the traffic if the organization is big, then it can maintain the traffic and maintain the redundancy. Yes, 100%. It is a part of domain controller. So it maintain the traffic. Okay. But particular domain has no right permission. ये खुद कोई राइट नहीं कर सकता, राइट लेवल की परमिशन नहीं होती इसके पास, राइट? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो वही यहां पर कहा मैंने कि ये जो पर्सन बाहर खड़ा है, ये बाहर की ट्रैफिक आ रही है, तो ये उससे पूछेगा कि भाई हाँ क्या काम है? ठीक है, मुझे फ़ोन लेना है, नया नया लेना है, ठीक है, नया लेना है तो आप यहाँ चले जाओ। समझ में आया? ऐसा कुछ करा। सो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर वर्क लाइक दैट। ओके, it handle the request, it maintain the traffic, okay, it maintain the replication, okay, clear है? enhance security, इनहेंस सिक्योरिटी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आप डायरेक्टली मैनेजर से जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, आपको पहले गेट कीपर और बहुत सारे लोगों से, मतलब कि बाउंसर या जितने भी ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन सब से निपट कर आगे जाना पड़ेगा, है ना? गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे हम डायरेक्टली किसी अथॉरिटी से नहीं वो कर सकते, है ना? उससे पहले हमारे पास लो लेवल की परमिशंस के कुछ लोग होते हैं, तो वो एज पर क्वेरी आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, और वहाँ से जो रिप्लाई मिलता है वो अपडेट करते हैं। अगर आपने बोला कि नहीं, मेरा फ़ोन मैंने कल लिया था और मुझे उसको बदलना है, तो इसके पास वो परमिशन नहीं है ना? सर ये बट ये, लॉक्स भी रख रहा होगा ना, हाँ जैसे। डेफिनेटली इट मेंटेन दी कैशिंग, हम्म। राइट? इट मेंटेन द कैशिंग ऑप्शन, okay, to improve the redundancy, to improve the quick service reply and request। तो कैशिंग का यही तो बेनिफिट होता है कि हम जब एक बार कोई पर्टिकुलर पाथ पर विजिट कर लेते हो, तो उसका रिकॉर्ड्स जो अब हमारी मेमोरी के अंदर होता है, तो दोबारा वहाँ पहुँचने में हमें समय नहीं लगता है, इजली इसके पास वो डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाती है ना? इट स्टोर दी लॉग। अगर लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट स्टोर दी लॉग और मेंटेन दी कैशिंग कैपेबिलिटी फॉर फर्दर असिस्टेंस। भाई दोबारा कोई आएगा तो उस लेवल की लॉग इसके पास रहेगी, तो ये दोबारा उस रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रैफिक, मतलब इस डोमेन पर जाने नहीं देगा। आप समझ रहे हो ना? जाने न देने का मतलब कि उसकी रिक्वेस्ट का ट्रैफिक यहाँ नहीं आएगा, और वो कहीं ना कहीं लूप, एक तरीके का फ्री ट्रैफिक होगा, और ये यहीं से यहीं उसको क्या कर देगा,
आंसर कर देगा। राइट। तो ये भी बेनिफिट हमें इधर देखने को मिलता है ना। सिक्योरिटी इनहेंस करने का मतलब ये होता है कि अगर एडिशनल कोई क्वेरी आ रही है तो आप यहाँ पर क्वेरी इनपुट कर सकते हो, बट राइट का कोई भी क्वेरी यहाँ से आपको रिप्लाई नहीं देगा ये। तो जो भी हैकर अटैकर होते हैं, अगर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पर कोई क्वेरी ऐसा कर रहे हैं और राइट लेवल के चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे हैव नो परमिशन। राइट, समझ रहे हैं? अभी क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सर। बट सर एक छोटा सा है, जैसे कि अगर some kind of request has been raised by some user, then the RODC server has the authority to drop that packet if it is not available, means some kind of miscellaneous request has been raised, जैसे कि कोई गलत चीजें रिक्वेस्ट करा गया आरओडीसी सर्वर को, और वो ड्रॉप कर सकता है क्या, या फिर वो आगे भेज देगा डीसी के पास? नो नो नो, ये ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप इन द सेंस कि इसके इसके लिमिट के बियॉन्ड जो भी चीजें होंगी, है ना, हम्म। बियॉन्ड ऑफ लिमिट, ये उसको क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। रिजेक्ट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। क्योंकि अगर आप जैसे फोन की एग्जांपल दिए, तो मैं जाके फोन की दुकान में जाके मैं बोलूंगा कि आटा है करके, तो वो वहीं से मना कर देता है, वहीं राइट? से मना कर देगा, या वहां से बोलो कि भैया मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो सारा पैसा वो किधर रखा जाता है ना, किस बैंक में कब पैसा निकल कर जाता है ना। आप समझ रहे हो राइट ना? सर। यस सर। तो उस लेवल की क्वेरी वो कहेगा कि भाग यहाँ से, है ना, सिंपल। तो मेरे कहने का मतलब, क्योंकि इसको लिमिटेशन मिली हुई है, आप इसे राइट क्वेरी नहीं करोगे तो उस क्वेरी को ये क्या कर देगा? ड्रॉप करेगा ना। राइट। अगर उस क्वेरी का ये यहां पूछने चला जाए तो फिर ये जो अंदर टीम बैठी हुई है वो क्या करेगी? आप समझ रहे हो? मैनेजर कहेगा तुम भी निकल जाओ और वो उन सबको भी लेकर चले जाओ यहां से, है ना। तुम प्रॉपर रूल नहीं तुमको पता चल पा रहा है कि तुम्हें किस लिए वहां रखा गया है। तुम्हें रखा गया है कि कोई फोन इसका लेने आ मतलब रहा है। है सर कि कोई भी ट्रैफिक अगर जाएगा तो वाया होते हुए आरओडीसी जाएगा। नहीं नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि ये हमारे आरओडीसी से होकर जाए, बट एक स्पेसिफिक, देखो, डोमेन, सिंपल ये बात समझ लो कि अगर हम लोग मल्टीकास्टिंग, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत पता हो तो ये होता है कि हमारे पास अगर 4 सर्वर हैं, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, ठीक है, अभी आरओडीसी से अलग है, मैं एक सिंपल क्वेरी पर बात करता हूँ। अगर हमारे पास ऐसे 4-5 सर्वर हैं, ठीक है, और एक यूज़र यहाँ पर है, और यहाँ से ये यूज़र ट्रैफिक करता है, तो इसके सबसे पास में कौन सा सर्वर है? ये वाला। समझ रहे हो? हेलो। यस सर। तो ये आंसर इसको करेगा। ओके। अगर ये यूज़र यहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके, ये जब कोई क्वेरी करेगा, मान लिया कि ये भी गूगल का डॉट कॉम है, गूगल डॉट कॉम, गूगल डॉट कॉम, गूगल डॉट कॉम, गूगल डॉट कॉम सारे हैं, ठीक है। आप इंडिया से गूगल डॉट कॉम एक्सेस करते हो तो गूगल डॉट को डॉट इन ओपन होता है ना। समझ रहे हैं आप? सर। आप उसी लैपटॉप से, उसी पर्टिकुलर डिवाइस से आप यूएसए में जाकर एक्सेस करते हो तो डॉट को डॉट यूएसए शायद एक्सेस हो। आप समझ रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि एक ही सर्वर, मतलब कि एक ही डोमेन मल्टीपल सर्वर के साथ ऑपरेट हो रहा होता है थ्रू मल्टीकास्टिंग, राइट। तो आप जिस लोकेशन पर होते हैं उस लोकेशन पर वो सर्वर आपको रिप्लाई करता है ना। इन केस अगर ये सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, ड्यू टू बिजी स्केड्यूल, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो ये क्या करेगा? अपने फर्दर डोमेन इन्वायरमेंट में आपकी क्वेरी सेंड करना स्टार्ट करेगा, है ना। इसीलिए तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट होता है। आप फॉरेस्ट में, जंगल में घुसते हो केला खाने के लिए, और आपने एक छोर पर एंटर किया तो केला आप यहाँ तो नहीं ढूंढने जाओगे ना, अगर यहाँ पर रखा है तो। समझ रहे हो आप? यहाँ पर अगर पेड़ है आपके सामने इस पॉइंट पर, तो आप इस पॉइंट तो नहीं जाओगे ना, आपका प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो गया, है ना। तो अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, एंटर करने के बाद 2 किलोमीटर आपने चेक कर लिया नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? और आगे अपनी क्वेरी को, मतलब और आगे देखोगे ना कि ये भी रास्ता है आगे जाने का, शायद आगे वाले रास्ता से जाओ, आगे शायद मिल जाए, है ना। समझ रहे हैं?
तो एग्जैक्टली ये होता है। तो अगर हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में अगर पेड़ यहाँ पर है, 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 तो जैसे यूजर को अवेलेबिलिटी होगी हमारे डोमेन की, वो वहां से रिक्वेस्ट और रिप्लाई कर लेगा, है ना। हम ये डेडिकेटेड नहीं कह सकते कि हमें इससे होते हुए ही जाना है, हम कहीं से भी होते हुए जा सकते हैं पूरा डोमेन इन्वायरमेंट में, राइट। आउटसाइड ऑफ यूजर का, अगर आउटसाइड ऑफ डोमेन या आउटसाइड ऑफ डोमेन बॉक्स की क्वेरी करते हैं तो, बट इनसाइड ऑफ यूजर अगर है, तो इनसाइड ऑफ यूजर हमारा क्या है, वो तो हमें पता है ना कि यहाँ पर आरओडीसी लगा हुआ है, तो यहीं पर हमारे यूजर्स काम कर रहे हैं। तो वो अपनी पहली क्वेरी कहाँ सेंड करेंगे, इसी को तो भेजेंगे, राइट। हेलो, यस सर। समझ में आया। तो जो एक पूरे बड़े डोमेन इन्वायरमेंट में जब मल्टीपल सर्वर टुगेदर वर्क करते हैं, तो उसमें जो सर्वर रिचबिलिटी या जो सर्वर अवेलेबिलिटी में आ, होता है, वो उसको आंसर करता है। ये हमारा प्रोसेस है। आरओडीसी मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू मी इट इज रूल आर पॉलिसी। इट इज रूल और पॉलिसी, किसी ने मैसेज किया है, अप्लाई फॉर स्पेसिफिक यूजर ऑन ऑथेंटिकेशन। हाँ, इट इज रूल और पॉलिसी का ये स्टेटमेंट मुझे आपका क्लियर नहीं हो रहा है। अप्लाई फॉर स्पेसिफिक यूजर ऑन ऑथेंटिकेशन। हाँ, सिंपल आरओडीसी का ये काम समझो कि एक ऐसा सर्वर है जो हमारी रिक्वेस्ट को, अगर हमारे डोमेन के इन्वायरमेंट में, हमारे डोमेन के आस या डोमेन से जितने भी इस इन्वायरमेंट के यूज़र हैं, जब भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो ओनली रीड ओनली की परमिशन वो कर पाएंगे। अगर कोई यूज़र यहाँ से पासवर्ड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी ऐसा वो करता है, तो वो इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, उसकी क्वेरी को ये क्या करेगा, आगे रीड नहीं प्रोसेस कर करेगा। देगा कि अदर डोमेन में जाकर अपनी क्वेरी का पता करो, है ना। ये उसके लिए तो फिर स्पेसिफिक डोमेन, अब मान लिया कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पर अ, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई एरर आ गया, तो आप क्या करते हो, आपके डोमेन इन्वायरमेंट में भी आपके फ्लोर पर एक आरओडीसी रखा हो, तो क्या आप आरओडीसी सर्वर के अंदर जाकर उस यूज़र के अकाउंट के बारे में कोई मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। आपको रीड यूज़र का डेटा तो मिल जाएगा, बट क्या आप उसमें चेंजेस कर पाएंगे, यूज़र तो बना दिख जाएगा, नहीं कर पाएंगे ना। समझ रहे हैं। उसके लिए आपको अपने रूट लेवल, टॉप लेवल या रीड एंड राइट लेवल सर्वर के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ से आप उस यूज़र के डेटाबेस पर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और वो मॉडिफिकेशन फिर हमें यहाँ पर, यहाँ मतलब इसको रिप्लाई में मिल जाएगा, और ये फिर उसका अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, राइट। समझ रहे हैं। यस सर। ओके। तो हमारे डोमेन के पास है, तो ये रीड करने के लिए बस बना हुआ है, राइट करने का काम कोई और डोमेन से होता है। ओके। तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टिसिपेशन, हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ट्रैफिक को बैलेंस कर रहा है, रेप्लिकेशन बैलेंस कर रहा है, एक तरीके का सपोर्ट सर्वर के फॉर्म में काम कर रहा है, एक तरीके का सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि भाई, अब मान लिया फॉर एग्जाम्पल, एक एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारा मेन सर्वर यूएसए में है, और हमारा एक ब्रांच है जो कि, या कहीं पर भी एक हमारी स्पेसिफिक ब्रांच है जो कि वो बी लोकेशन पर है, उसी उसी पर्टिकुलर वहीं यूएसए में बी लोकेशन है। यहाँ पर हमारे सारे वो हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस है, और यहीं पर कहीं ना कहीं ब्रांच ऑफिस है जहाँ पर लोग काम करें। तो ब्रांच ऑफिस में जो हमारे सर्वर्स लगे होंगे या लगाएं हम, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एज आरओडीसी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ड्यू टू सिक्योरिटी, कि भाई अगर इस सर्वर का एक्सेस भी कोई ले लेता है, सो दे पर्टिकुलर यूजर और एडमिन हैव नो परमिशन टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, राइट। अभी समझ में आया कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल से, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पर जो सर्वर होगा वो चेंजेस नहीं कर सकता, मतलब कि यहाँ पर जो एडमिन है वो उस सर्वर के हेल्प से चेंजेस नहीं कर सकता, बट क्या यहाँ का यूजर
क्या यहाँ के यूज़र यहाँ के पर्टिकुलर सर्वर से रीड के बिहाफ पर जो अपना ट्रैफिक है, जो अपना रिक्वेस्ट है, जो अपनी सर्विस है, वो मैनेज करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। ओके, समझ में आया सबको? तो जरूरी यस सर। नहीं है कि ये बनाना ही बनाना होता है, ये सब हमारे पार्ट हैं। ज़रूरत है तो बनाएं, नहीं ज़रूरत है तो फिर कोई वो नहीं है। बट यस, जितने हमारे सर्वर के मतलब सर्वर मशीनें जितनी बढ़ाई जाएंगी, उतना स्मूथ ट्रैफिक मेंटेन होगा हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में। ओके, उतना स्मूथली हमारा पूरा डोमेन इन्वायरमेंट रन करेगा, उतना कम डाउन टाइम हमें देखने को मिलेगा, उतना कम लैग हमें देखने को मिलेगा सर्विस को लेकर। राइट, हर डोमेन हमारे सर्विस को बैलेंस कर रहा है, हमारे ट्रैफिक को बैलेंस कर रहा है, हमारे यूज़र ग्रुप्स कंप्यूटर्स इन सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक लाइक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग डीसी पहले बनाएंगे, फिर हम लोग सीडीसी बनाएंगे, और फिर हम लोग चाहें तो यहाँ पर एडीसी भी बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, और बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बनाते हुए आप ये सारा काम कर सकते हो। ओके, इसके लैब सेटअप के लिए अगर हम लोग देखें तो लैब सेटअप इन द सेंस कि हमारे पास लैब सेटअप के लिए एटलीस्ट 3 सर्वर या सिंपल एक सर्वर तो हमारे पास होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पर लैब सेटअप को अच्छे से समझें और प्रैक्टिकल करते हैं, फिर इसके अंदर और थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में थ्योरी भी शायद दिक्कत करे, बट ये सब पहले करना ज़रूरी था। हमारे पास अगर लैब सेटअप की मैं बात करूं, तो एक एक डोमेन यानी कि एक सर्वर इंस्टॉल करके हम लोग सारा का सारा लैब्स प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और एक क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्लाइंट। मान लिया कि इसके साथ मैंने स्विच कनेक्ट कर रखा है, या स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है, और स्विच से मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स, ये सभी हमारे क्या है, क्लाइंट मशीनें हैं। विंडोज़ 7, 8, 10, 11, कोई भी क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे 7, 8, 10, 11 ये सब क्लाइंट मशीनें हैं, ये सभी सर्विस कहाँ से ले रहे होंगे, हमारे डोमेन से। ओके, तो हम चाहें तो एक डोमेन इंस्टॉल करके एक डीसी से सारा काम कर सकते हैं। एक सीडीसी अगर आपको बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, प्रैक्टिकली बनाकर देखना चाहते हो कि हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आप बना लेना, सीडीसी बना लेना। और अगर आपको एक एडीसी भी बनाना है तो एडीसी बना लेना। बट इतनी मशीन के लिए एटलीस्ट आपको 4 GB रैम चाहिए इसके लिए, और मिनिमम 4 GB इसके लिए आप दे दो, 4 GB इसके लिए दे दो। अगर आप सर्वर 2025 रन कर रहे हो तो, अगर आप 2019 या 16 रन कर रहे हो तो आप मेन सर्वर को 4 GB दो, बाकी 2 GB से भी काम चला सकते हो। ओके, तो अगर हमारे सिस्टम पर मेन मशीन पर जिस जो हमारा लैपटॉप है, अगर हमारे लैपटॉप पर 8 GB रैम है मिनिमम, और 100 GB स्पेस है, तो मैं एटलीस्ट अपना डीसी या डोमेन का प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर VMware पर या वर्चुअल बॉक्स पर या हाइपर वी पर एक मशीन इंस्टॉल करेंगे, जिसमें सर्वर और ये 4 GB रैम दे देंगे, और एक विंडोज़ 10 ले लेंगे, और विंडोज़ 10 को हम एटलीस्ट 1 GB रैम दे देंगे। ठीक है, या फिर हम इधर क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए और थोड़ा सा बेटर, हम लोग 3 GB रैम दे सकते हैं। ओके, और इधर हम लोग फिर 2 GB या 1.5 GB, है ना, कुछ रैम का स्पेसिफिक एरिया बढ़ा सकते हैं। तो ये करना होगा। और या तो हम ये कर सकते हैं, 2 GB इसको दे दें, 2 GB इसको दे दें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बट यस, जैसे ही लोड या रीबूट होगा हमारा सर्वर, उस कंडीशन में हमारा जो लो लेवल हार्डवेयर होगा वो टाइम लगा देगा हमारे सिस्टम को बूट होने में, हमारे सिस्टम को रेडी होने में। ओके, रनिंग सिस्टम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है और 50,000 यूज़र तो वहाँ पर लॉगिन नहीं करा रहे हैं, है ना। हम लोग नॉर्मल एक एक यूज़र को लॉगिन करा के अपनी सारी प्रैक्टिकल की चीज़ें देखेंगे, करेंगे, पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे, सारा काम करेंगे। तो आप समझ रहे हो लैब सेटअप को लेकर।
बट अगर हमारे पास अच्छा रैम है, क्या हम 8 GB रैम पर डीसी सीडीसी या डीसी नहीं बना सकते? आप बना सकते हो। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपका लैपटॉप पर VMware, और इसमें आप एक सर्वर लॉन्च करो जिसको आप डीसी बनाना। फिर इसको आप डीसी बना दो, और एक और सर्वर इसको 8 GB रैम था, मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, मैक्सिमम अगर आपके पास है तो फिर आप ऑलरेडी मैनेज कर लोगे। तो अगर मैंने दूसरा सर्वर इंस्टॉल किया जिसको मुझे CDC बनाना है, मैंने इसको 2 GB रैम दे दिया, तो 8 GB से मैंने 2 GB बनाया, 2 GB बनाया, तो ऑलरेडी हमने दो सर्वर बना दिया। अब डीसी और सीडीसी को मैंने लाइव किया एक साथ, पहले डीसी बनाया और सीडीसी बनाकर मैंने चेक कर लिया कि सीडीसी बनता कैसे है, सीडीसी के अंदर यूजर ग्रुप्स कंप्यूटर कैसे बनते हैं, जो भी चीज़ें आपको करना है। सीडीसी से डीसी का डेटा एक्सेस करके देखते हैं कि कितना प्रिविलेज हमें मिलता है, कितना ऑथेंटिकेशन है, कितना हाँ प्रिविलेज है, कि हम डीसी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। डीसी से हम लोग सीडीसी को एक्सेस करके देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर रूट है तो ये कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है इसके डेटाबेस में, बट ये चाइल्ड है तो ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। बट अपने लोकेशन पर जितने यूज़र हैं उनको यूज़र क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, कंप्यूटर्स मेंटेन करना, सारा काम कर सकता है, पॉलिसी डिप्लॉयमेंट सब कुछ कर सकता है। बट ये मेन सर्वर के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, बट मेन सर्वर सारे चेंजेस कर सकता है। ये सब प्रैक्टिकल करोगे। फिर आपको एडीसी बनाना है, तो फिर हमें एडीसी किसका बनाना है, अगर इसका बनाना है तो इसका बनाओ, इसका बनाना है तो इसका बनाओ। तो हमें एक ही सर्वर लाइव करने की ज़रूरत है ना, तो हम एक सर्वर को क्या कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, और एक नया सर्वर दोबारा इंस्टॉल करेंगे और उसको सीडीसी बना लेंगे 2 GB रैम के साथ। अब हमें एक साथ इसकी ज़रूरत नहीं है लाइव करने की, इसको शट डाउन कर दो, एक नया बनाओ, इस पर प्रैक्टिकल कर लो। जब इसमें एडीसी का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ तो इसको डाउन कर सकते हो। फिर आप विंडोज़ 10 लेकर अपना डीसी से जो भी पॉलिसी डिप्लॉय करना है, जो भी ट्रैफिक या जो भी यूज़र के लिए आप काम करते हो कंपनी के अकॉर्डिंग, लॉगिन करके उस पर अपना काम या प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देख लेंगे। तो हमें एटलीस्ट एक बार में एक ही सर्वर लाइव करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 GB रैम है तो भी आप परफेक्टली अपना सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? बट 16 GB रैम है, 24 GB रैम है, 32 GB रैम है, तो फिर एक साथ आप 4 सर्वर लाइव कर लो, है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको लैब सेटअप के रिगार्डिंग? yes sir. तो मैं यहाँ पर लैब सेटअप करने जा रहा हूँ अपने सर्वर पर, और इस सर्वर पर मैं मेरे अपने लैपटॉप पर मैं एक सर्वर इंस्टॉल करूँगा SR1, एक मैं स्टार्ट स्टार्ट मतलब इंस्टॉल करूँगा SR2, SR3, बट मैं काम एक ही पर करूँगा। और मेरे पास विंडोज़ 10 भी है, विंडोज़ 11 सब इंस्टॉल करके रखूँगा, जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास सेटअप है। और मैं यहाँ पर सर्वर 2025 का लैब लेकर चलने वाला हूँ। डाउनलोड आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, और मैंने इसीलिए पहले से आप लोगों को लिंक वगैरह सब शेयर कर रखा था कि डाउनलोड कहाँ से करना है क्या है। तो आई थिंक आप में से कितने लोगों का लैब सेटअप हो गया है, और स्टिल आज भी किसी का लैब सेटअप नहीं हुआ है GUI सर्वर में? कोई ऐसा है क्या? नहीं? ग्रेट। यस, किसी ने मैसेज किया है क्या, कोई ऐसा? ओके, नहीं है तो फिर ग्रेट। तो फिर हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट कल के सेशन से।